Hello everyone. In this video, we will learn how to plot market profile for different market session. इसका हिंदी वर्जन नेक्स्ट हाफ में है, जिसका टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So Go Charting provides order flow data and market profile for different exchanges like CME, US stocks, crypto, and forex. Some of these markets have continuous trading throughout the day. We divide entire day into various sessions. For example, in Forex market, we have three main sessions called as Asian sessions, London session, and New York sessions. Similarly, we have different sessions for CME, US stocks, and MCX also. So let us learn how to plot market profile for each of these sessions within a day. So let us take example of Euro USD. Okay. Now let me add a day break for more clarity. So for that, I'll go to setting. Under the chart setting, we have this day break option. I'll enable it. Now you can see each day is marked clearly. However, you can also see that we are getting only one market profile for the entire day. It does not provide market profile for different sessions. We all know the importance of sessions, as trading activity is different for different sessions. So the importance of market profile for each session will also vary. So how will we get the market profile for different session? For that, first of all, we have to make sure that our time zone settings are correct. So for that, we'll go to this UTC set time zone and make sure that it is selected to the source exchange. After that, we go to the settings and we go to the sessions. Now here, if you see, we have these kind of sessions. So because this is Euro USD, we will select crypto forex. Here you can also see for each session, we have also mentioned the end hour, like when they are ending. So for example, for Asian session, it is ending at 7. For London, it is ending at 12. And for US, it is ending at 20. And then post close, whenever it is ending at the daybreak. So we will see how these numbers are matching up in the chart. So first of all, let me apply the sessions. And now we can see there are different market profile for different sessions. So first of all, let's understand this market profile belongs to which session. So this is starting and this is end. So we can clearly see the time at 7. So this is basically the Asian session market profile. Now next market profile ends at 12. So this market profile is for London, and similarly this market profile is for US. This is ending at 20, right? And this is our post close session. We can see it clearly, and the next day start again from here. Now we can also merge and unmerge these profiles again. For this, we have two options. So first of all, if you want to merge any profile, what we can do is we can simply right click on the profile and we have the option of merge profile to the left. So if you merge profile to the left, it will merge to the left. The second option is fixed range market profile, which we can obtain from the drawing tools, shapes and text, and we have fixed range market profile. If you want a fixed range market profile, we can select from any candle to any candle and it will give us a fixed range market profile, something like this. In a similar way, we can also plot market profile for US market, CME and MCX. Let us take one more example of CME symbol. So let's take example of ES. Now here you can see the source exchange time has been automatically set to -5, UTC -5. So we do not need to worry if we have selected it as a source exchange. Now we also have our day breaks on. Let's go to the session settings. Now we have chosen CME because ESM is a part of CME. Now if we apply the session, in CME we have two sessions, mainly session name one is overnight, which ends at 8, and then regular trading hour, which is called RTH. So we have accordingly market profiles for two different sessions. Now for US stocks, we have following sessions, which are pre-market, regular trading hour and post-market, whose timings are mentioned here. We can split market profile accordingly.
One more important thing here is that if you want to get the entire sessions in case of US market, we need to keep it under ETH. ETH means electronic trading hours. So electronic trading hours includes RTH under it. So RTH is only for regular trading hours in case of US. ETH includes regular trading hour plus overnight sessions under it. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफरेंट मार्केट सेशंस के लिए मार्केट प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं। कुछ मार्केट्स जैसे सीएमई, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन सारे मार्केट्स में थ्रू आउट द डे ट्रेडिंग होती है। सो हम पूरे दिन को वेरियस सेशंस में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉरेक्स मार्केट को हम 3 मेन सेशंस में डिवाइड करते हैं, एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क। सो अभी हम यूरो यूएसडी का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डे ब्रेक ऐड किया हुआ है जो कि डे स्टार्ट और डे एंड को हमको दिखाता है। तो ये हमारे पास पूरे दिन का मार्केट प्रोफाइल यहाँ पे हमको मिल रहा है। सो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमको सेशन के हिसाब से मार्केट प्रोफाइल नहीं मिल रहा है, ये पूरे दिन का मिल रहा है। अब फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कि सेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सेशन में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो डिफरेंट है। तो ऐसे सेशन जिसमें ज्यादा वॉल्यूम्स होते हैं वहां के मार्केट प्रोफाइल ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे एज कंपेयर टू जहां पे वॉल्यूम बहुत ही ड्राई है, राइट। तो इसीलिए सेशंस मार्केट प्रोफाइल ड्रॉ करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हमको सेशन मार्केट प्रोफाइल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमको अपने टाइम जोन की सेटिंग को सही करना होगा। तो टाइम जोन के लिए हमको बहुत ही सिंपल सी सेटिंग है, हमको केवल यहाँ पे सोर्स एक्सचेंज पे सेलेक्ट करके रखना है। तो ये डिफरेंट मार्केट्स के टाइम जोन्स को ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको यहाँ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स में हमको जाना है सेशंस पे। चूंकि ये यूरो यूएसडी यानी ये फॉरेक्स मार्केट का पार्ट है तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेशंस हैं, टोक्यो या एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, और इन सारे सेशंस के जो एंड आवर्स है, ये सेशंस कब एंड हो रहे हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अभी अगर हम देखें ये मार्केट प्रोफाइल को अगर हम देखें, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई सेशन करेंगे। जैसे ही हमने अप्लाई सेशन किया, ये पूरा का पूरा मार्केट प्रोफाइल डिफरेंट पार्ट्स में सेशन के अकॉर्डिंगली बढ़ गया। तो अभी हम देखते हैं, सपोज ये हमारा डे स्टार्ट है, ये एंड आवर हमारा क्या है 7। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमको ये हमारा 7, सो यानी कि ये वाला जो हमारा मार्केट प्रोफाइल है ये हमारा एशियन सेशन का है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, एंड आवर 12। सो 12 हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो मार्केट प्रोफाइल है ये हमारा लंदन सेशन का है, और ये वाला हमारा मार्केट प्रोफाइल यूएस सेशन का है, और ये क्या है हमारा पोस्ट क्लोज, राइट। अब हमें यहाँ पे सेशंस के अकॉर्डिंग मार्केट प्रोफाइल मिल गए हैं। अभी इन मार्केट प्रोफाइल्स को हम फिर से मर्ज या अनमर्ज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। सपोज मुझे इसको और इसको मर्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वाले को राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ऑप्शन है क्या, मर्ज टू लेफ्ट। तो अगर मैं मर्ज टू लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये दोनों प्रोफाइल हमारे क्या हो गए, मर्ज हो गए। सपोज इसको मुझे मर्ज करना है, मर्ज टू लेफ्ट, ये यहाँ पे तीनों मार्केट प्रोफाइल मेरे मर्ज हो गए। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे ड्राइंग टूल्स में जाने के बाद शेप्स एंड टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ पे फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, और मैं यहाँ पे कहीं से भी मार्केट प्रोफाइल को ड्रॉ कर सकता हूँ। सपोज मुझे इस कैंडल से इस कैंडल तक का मार्केट प्रोफाइल चाहिए, सो आई सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ पे ये मुझे एक नया मार्केट प्रोफाइल मिल गया। सिमिलरली हम यहाँ पर सीएमई और यूएस मार्केट और एमसीएक्स के लिए भी मार्केट प्रोफाइल प्लॉट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एमसीएक्स के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेन सेशन है, इंडियन सेशन और ये लंदन सेशन। इनके जो एंड आवर्स हैं वो भी हमने मेंशन किए हुए हैं। ये सेम चीज अगर आप कोई भी एमसीएक्स का यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल करके और अप्लाई सेशन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। सिमिलरली यूएस मार्केट के लिए हमारे पास ये मेन सेशन है, प्री मार्केट, रेगुलर ट्रेडिंग आवर एंड पोस्ट मार्केट, और सीएमई ग्रुप के लिए हमारे पास जो मेन सेशन है ओवरनाइट और रेगुलर ट्रेडिंग आवर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे फ्रेंड्स, देखिए यूएस मार्केट या सीएमई में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ईटीएच सेलेक्ट करके रखना होगा अगर आपको पूरे दिन का डेटा चाहिए। सो रेगुलर ट्रेडिंग आवर इज लाइक, जैसे हमारे इंडिया में निफ्टी सुबह 9 बजे से खुलता है, 9:15 बजे से, और 3:30 बजे बंद होता है। सो दिस इज कॉल्ड रेगुलर ट्रेडिंग आवर। बट अगर उसके बाद के जो ट्रेडिंग आवर्स अगर आपको इंक्लूड करने हैं तो जैसे सीएमई के केस में हमारे पास आता है ओवरनाइट सेशन, या यूएस के केस में हमारे पास आता है
प्री मार्केट, रेगुलर ट्रेडिंग आवर और उसके बाद पोस्ट मार्केट सेशन। तो ये सारे अगर आपको इंक्लूड करने हैं तो आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज हमने ईएस मिनी को सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ईटीएच और आरटीएच आ गए, ठीक है। तो आपको ईटीएच सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ईटीएच के अंदर ये सारे सेशन आ जाएंगे। मतलब ईटीएच आपका प्री मार्केट भी इंक्लूड करेगा, पोस्ट मार्केट भी इंक्लूड करेगा, प्लस रेगुलर ट्रेडिंग आवर भी इंक्लूड करेगा। ये तो यूएस स्टॉक के केस में हो गया। सीएमई के केस में ईटीएच जो है हमारा सेशंस, जो ओवरनाइट सेशन होंगे उसको इंक्लूड करेगा, और रेगुलर ट्रेडिंग आवर तो इंक्लूड करेगा ही करेगा। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मार्केट प्रोफाइल को सेशन वाइज हमको कैसे स्प्लिट करना है। थैंक यू सो मच।